क्या मतलब? Okay, okay. Okay, so just check whether you have written these equations for yesterday. We just started this topic, charge distribution. So we have seen four charge distribution. First is the point charge. Okay, so that is you can consider a single charge, or you can say a charge distributed as a point. Okay, next is line charge. So charge distributed along a line. Third is the surface charge, charge distributed over a surface. And fourth one is the volume charge. So you will consider any random volume. Example, it can be a sphere, it can be a rectangular box, okay, square box. So that is the volume charge. So for these three, okay, line charge, surface charge, and volume charge, we have dq equation. Dq means the incremental charge. So dq is rho l into dl. So rho l into dl. Now first we will consider for the line charge. So dq is rho l into dl. So what is a rho l over here? What is rho l? बताया था ये कल. लाइन चार्ज डेंसिटी. यस यस, रो एल इज द लाइन चार्ज डेंसिटी. ओके, जब हम लोग बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब वो लाइन पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो हाउ डेंस दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, सो दैट डेंसिटी इज गिवन बाय रो एल ओवर हियर. सो अभी मुझे अगर डीक्यू फाइंड आउट करना है, देन व्हाट हैव टू डू? आई नो द लेंथ, आई नो द इंक्रीमेंटल लेंथ ऑफ द दैट चार्ज, line charge. I know its density. Then I have to just multiply these two. So multiplying rho l into dl, what I will get? I will get dq. So then we will get dq. Now from dq you can easily calculate q by integrating both the sides. Okay, so q is equal to integration over a length l, किसका? rho l into dl का. ठीक है, so that is equation 4.13a. Similarly we can write the equation for of dq for surface charge distribution and volume charge distribution as per equation 4.13b and 4.13c. So surface charge में तुम लोग को क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ओवर अ सरफेस एस, रो एस इंटू डी एस. एंड वॉल्यूम में डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सॉरी, क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर अ वॉल्यूम वी, रो वी इंटू डी वी. So just check whether you have completed these three equations. Completed. Can we move मैम कल ahead? 4.13 ना. 4.13, हाँ, ए बी सी तीन इक्वेशन लिखा क्या? या मैम लिखा. हाँ ठीक है. ओके, एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड नो द यूनिट्स. ओके, यूनिट्स ऑफ रो एल, रो एस एंड रो वी. व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रो एल? क्या होगा रो एल? लाइन चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? कूलम पर मीटर. कूलम पर मीटर. हाँ ठीक है. हाँ, तो इसमें कुछ अभी डाउट नहीं है. सो इट इज द लाइन चार्ज, सो दैट्स व्हाई डिवाइड न्यूमरेटर विल बी चार्ज. इट इज अ चार्ज, सो कूलम पर मीटर आएगा क्योंकि लाइन चार्ज डेंसिटी है. सिमिलरली फॉर सरफेस चार्ज इट विल बी कूलम पर मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर. एंड फॉर वॉल्यूम चार्ज कूलम पर मीटर. मीटर क्यूब. ठीक है, तो ये प्लीज राइट डाउन दिस यूनिट्स आल्सो. ठीक है, राइट डाउन द यूनिट. Okay, so you have completed these three, 4.13a, b, c. Now next, now we have got the equation of q. Okay, q कैसे find out करना है वो तो पता चल गया. अभी next क्या करना है? We will calculate capital E. So what is the capital E? Capital is the electric field intensity. हम लोगों ने कल ही देखा था. So you have to calculate electric field intensity for these three different charge distribution: line charge, surface charge, and volume charge. So how to do that? Can you find out electric field intensity from Q? If you know Q, can you find out E? Is there any equation which we have studied before? F upon Q. बराबर. So just check, you have written equation 4.11. Can you see the change of slide? 4.11, just check, you have written in your notebook. कल लिखा था हम लोगों ने 4.11. check. What is the 4.11 equation? Tell me. Slide change किया वो दिखा क्या तुम लोग को? Can you see this? नहीं मैम, वो चार्ज No, ma'am. का चार्ज यही वाला है. ओके ठीक है, ये वाला. सी, ये कल हम लोगों ने देखा था इक्वेशन. जस्ट चेक 4.11. You must have written this equation 4.11.
तो ये इक्वेशन में क्या है? इट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, which is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R square into AR, small AR. Okay, so you use this equation, use this 4.11 equation, and use this Q का equation, and try to derive electric field intensity equation for line charge, surface charge, and volume charge density. Okay, so you have to get these equations 4.14, 15 and 16. ये तुम लोग को derive करना है. So do that, all of you. क्या करना है मैंने बता दिया, अभी करो तुम लोग. 4.11 यूज करो, यूज ये वाला Q. For line charge use 4.13A. Do that, just check 4.14 मिल रहा है क्या. Make it fast. And once done, let me know. Completed? Yes, ma'am. Okay, so all of you have got these equations. सबको मिला क्या 4.14, 15 and 16? क्या मैम? Okay, ठीक है. Okay, so this was related with the various charge distribution and how to calculate Q and then E, that is electric field intensity from this charge distribution. Okay, write down next topic, Gauss law. Write down next topic, Gauss law and its application.
तो अभी सबसे पहले हम लोगों ने फैराडेज कूलम्स लॉ पढ़ा, अभी हम लोग गॉस लॉ स्टडी करेंगे. सो व्हाट इज द गॉस लॉ? अगेन इट इज द वन ऑफ द फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ठीक है, मैंने तुम लोगों को जो मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस बताए वो अभी एक एक करके हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे विद डिफरेंट लॉज. So now the second law is the Gauss law. So what is Gauss law? Just see the statement first. So Gauss law states that the total electric flux psi through any closed surface is equal to the total charge enclosed by that surface. ठीक है, मतलब क्या? अभी तुम लोग को अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ओके, इफ यू वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सर्फेस, एक पर्टिकुलर कोई तो रैंडम क्लोज सर्फेस है और वो पूरे सर्फेस में से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, ओके, how much flux is coming out of that surface. So if you want to calculate that, then that has been given by the Gauss. So what is that? So that is equal to actually that total flux, okay, total electric flux coming out of the any closed surface psi is equal to the total charge enclosed by the surface. Okay, it is equal to what? Total charge enclosed by the surface. इसका मतलब क्या है? Now see the figure on left hand side, right hand side. That is 4.12. ओके, सो यहाँ पे तुम लोग को ये वाला फिगर दिख रहा है. ओके, सो हियर ये जो है, सो यू कैन कंसीडर दिस इज एक रैंडम सरफेस, एक क्लोज सरफेस है. ओके, क्लोज सरफेस है ये V1 एंड देन अनदर क्लोज सरफेस इज देयर व्हिच इज V2. नाउ इफ यू सी द V1 एंड इफ आई आस्क V1 कंटेन्स सम चार्ज. ओके, V1 के अंदर ये जो क्लोज सरफेस है इसके अंदर कुछ चार्ज है. व्हाट इज दैट चार्ज? एक यहाँ पे चार्ज है जो है 10 नैनोकूलम का और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है विच इज -5 नैनोकूलम. ओके, नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द टोटल फ्लक्स, ओके, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द वॉल्यूम V1, देन हाउ टू कैलकुलेट यूजिंग गॉस लॉ. थोड़ा दिमाग लगाओ. रॉन्ग है तो रॉन्ग है, चलो कुछ इशू नहीं है, बट एटलीस्ट ट्राई. तुम लोगों को मैंने बताया. हाँ, क्या करना पड़ेगा? हम इंटीग्रेशन तो यहाँ पे तो ये तो सिंपल है. सी ऑलरेडी तुम लोग को दीज आर द कांस्टेंट नंबर्स. ओके, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कब आता है? अगर आपको कुछ वेरिएबल के साथ डील करना है. ओके, मींस यू डोंट नो एग्जैक्ट कितना है वगैरह, यू नो द डेंसिटी, बट अगर एग्जैक्ट वैल्यू कितना है वो अगर नहीं पता है, देन यू हैव टू गो फॉर द इंटीग्रेशन डेरिवेशन. बट अभी यहाँ पे यू ऑलरेडी नो देयर इज अ सरफेस, एक क्लोज सरफेस है रैंडम V1, उसके अंदर कुछ चार्जेस है. वो ये दो इंफॉर्मेशन तुम लोग के पास है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ इट यूजिंग गॉस लॉ. तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? सी द 4.39 इक्वेशन. psi क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस व्हिच इज इक्वल टू Q एनक्लोज ENC. टोटल चार्ज कितना एनक्लोज्ड है? दैट इज Q ENC. So your psi is equal to Q ENC. So can you use this equation and find out the total charge enclosed? Sorry, total flux coming out of the V1 closed surface? 5 nanocoulomb. सिर्फ 10 nanometer or 5 nanometer? Sorry, no, not nanometer, it is coulomb. Sorry, 10 nanocoulomb or 5 nanocoulomb? 5 nanocoulomb. 5 nanocoulomb. Right, it is plus. हाँ, right. कैसे किया तुम लोगों ने? क्या किया उसके लिए? You have added these two. Yes, क्योंकि तुम लोग को टोटल चार्ज कितना एनक्लोज है वो कैलकुलेट करना है. So to calculate the total charge, you have to add these two. So एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव है. So 10 minus 5, that will be plus 5. So plus 5 nanocoulomb is the, you can say it is the flux coming out of this area V1, closed surface area V1. Is this point clear? ये example clear है? V1 समझा? Now if I ask you same question, tell me the flux coming out of the closed surface V2. 0. हाँ, what will be the answer? 0. बाकी किसी को कुछ अलग आंसर है किसी के पास? All of you agree with this? 0? yes 0 is right. Yes, ma'am. Yes, right. 0 क्यों? क्योंकि कोई भी चार्ज it is not enclosed by V2. Okay, ये जो 15 nanocoulomb है that is outside this V2. Similarly, if this 20 nanocoulomb is there, that is again outside this V2. So जो enclosed नहीं है, that is not the part of flux. Okay, so you have to electric flux. So you have to keep this in mind. So that is the Gauss law. So you can write, just draw this diagram roughly. Draw the V1 and V2 area roughly, and just write down answer.
the electric flux coming out of V1 is equal to this much. Electric flux coming out of V2 is equal to this much. Hello, ma'am. Yeah. Ma'am, can you say that can we add the point charge and a volume charge? Because in V1 we have one is a point charge and the another one is a volume charge. Yes. So that distribution would be different, right? So first we have to calculate, convert the volume charge into a point charge. Then we have to calculate. We should calculate the total flux, right? One sec. Hello. See, again, it is just shown as a rectangular box, but it is not given as a density over there. Understood? So you will not consider. You don't have to integrate and all. You have to just add, simply add. So that will be 10 minus 5. So 5 nanocoulomb. Is it clear? Hello, Drumil? Hello. Ma'am, actually your voice is breaking for me, I guess. Okay. See, is it coming now properly? Hello. Yes, ma'am. Okay. So see, मैंने क्या बोला यहाँ पे see it is given as a constant 10 nanocoulomb. Okay. Once it is a constant value, then it doesn't matter कि distribution क्या है. You just have to simply add those charges. Is it clear? Hello. Yes, ma'am. Yeah. हाँ तो वो अभी तुम लोग को तो यहाँ पे कुछ इट इज अ वॉल्यूम चार्ज वो सब सोचने की यहाँ पे जरूरत नहीं बिकॉज यू हैव जस्ट इट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ओवर हियर बट यहाँ पे ऑलरेडी उसका वैल्यू कंप्लीट वैल्यू दिया हुआ है सो दैट इज द टोटल 10 नैनोकूलम ऑफ दिस पर्टिकुलर एंड पॉइंट चार्ज जो है दैट इज टोटल -5 नैनोकूलम सो इसको अभी आगे अपने को और कुछ यू डोंट हैव टू इंटीग्रेट और जो भी है वो नहीं करना है यू हैव टू जस्ट सिंपली ऐड दिस टू ठीक है सो 10 नैनोकूलम -5 nanocoulomb is equal to +5 nanocoulomb. That will be the total electric flux coming out of area V1, closed surface area V1. Is it okay? Yes, ma'am. Okay. So V1 का draw करो जल्दी से quickly, V2 be same. And write down total flux. So total flux coming out of V2 is 0. Write down that. Okay. Next, now we know the equation 4.39. Okay, so this is the base of Gauss law. 4.39 Gauss law क्या है वो तुम लोग को समझा? I have explained that with the help of example, and that is given by the equation 4.39. Gauss law equation 4.39 से हम लोग लिखते हैं psi is equal to q enclosed. Write down this equation also 4.39. Now next, now if you suppose अभी हम लोग we are dealing with a random area, okay, and you have to calculate psi. Then how to do that? So psi is equal to a closed surface है and you have d psi. Okay, closed surface है तो तुम लोग पहले छोटा सा area you will consider a small volume. Sorry, you will consider a small surface and वो surface को फिर close करके you will calculate first. So suppose that surface d psi. Okay, d psi is the incremental flux. So the incremental flux को अगर तुमने integrate किया you will get the total flux psi. So psi you can write as integration. This is now which integration? See, अगर इस पे contour है then what is this is called as? What does this mean? Over the surface. Okay. बट अगर उस पे हम लोग ने एक सर्कल ड्रॉ किया सी दिस इज इंटीग्रेशन साइन और इंटीग्रेशन पे तुम लोगों ने सर्कल ड्रॉ किया है दिख रहा है ये तो दैट इज क्लोज सरफेस हाँ ये पता होना चाहिए तुम लोग को ओके सो क्लोज सरफेस दैट इज द मीनिंग ओके सो नाउ हियर सो इंटीग्रेशन d psi is equal to integration now what is d psi can we write d psi as d dot ds
can we write d psi as d dot, d means capital D over here, electric flux density into Yes, ma'am. integrated over the surface. Okay, so you can write this way. Yes, so write this equation, psi is equal to integration, close integration of d psi is equal to integration over surface of d dot ds. ये जो d है that is the electric flux density. So electric flux density को अगर एक over the surface तुम लोग integrate करोगे, you will get psi. Okay, so psi you can calculate in this way. Now next part, from the gauge, what we have got, gauge says that psi is equal to total charge enclosed. So total charge enclosed, which is nothing but Q, which is equal to, now total charge enclosed, can I write Q is equal to integration of rho v dv? Now it is, see, here we are saying volume, क्योंकि charge enclosed है, तो charge enclosed करने के लिए कोई तो volume होना चाहिए. Okay, closed surface, you can consider, you can think of a closed surface. So whenever you are talking about a closed surface, that closed surface will become a volume. Okay, so total charge enclosed अगर मुझे calculate करना है, so कैसे करना पड़ेगा? अगर if I am having a rho v is the what, volume charge density. जो भी तुम लोग volume construct कर रहे हो, okay, उसका volume charge density अगर आपको पता है, तो उसको just over the volume integrate करो and you will get total charge enclosed Q. Is it clear this point? ये हम लोगों ने पहले भी देखा है, Q के equations, Q is equal to C. So this is related with volume. अगर surface होता, तो you can return integration rho s ds. अगर line होता, तो integration rho l dl. So here we have used the volume. Why volume? क्योंकि we are dealing with the Gauss law. And Gauss law में क्या बोला है उसने कि the total charge enclosed you have to calculate. Why? To get the total flux coming out of it. इसलिए total charge enclosed जो है वो calculate करने के लिए we need a volume. Okay, so that's why I have taken rho v dv, not rho s ds or not rho l dl. Is it clear this point? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. So all of you just write down this 4.40 equation. ये वाला लिखो. Psi is equal to psi, अगर psi calculate करना है तो psi हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, integration of d psi, ठीक है? Which is equal to, again we can write psi as integration over a surface, closed surface. किसका integration करना है? d dot ds. Where what is d? d is the electric flux density. d is the electric flux density. ये हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया रहेगा. If you can see psi का equation, just check whether you have written this equation before. Psi, yeah, yes. Can you see this equation 4.36 over here? Yes. हाँ, तो ये न्यू इक्वेशन नहीं है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. When we studied the electric flux density, at that time I explained you this psi is equal to integration of d dot ds. तो वही इक्वेशन हमने यहाँ पे यूज किया है. That's it. तो ये कुछ नया नहीं है यहाँ. बट अभी हम लोग क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेट करने वाले हैं बिकॉज वी आर डीलिंग विद द गॉस लॉ. ओके, सो कंप्लीटेड विद 4.40 इक्वेशन. नेक्स्ट we'll go for 4.41. now what is 4.41? अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने पास दो पार्ट है. एक तो psi कैन बी रिटर्न एज दिस इंटीग्रेशन ओवर सरफेस d डॉट ds एंड दूसरा q, total charge enclosed Q can be given as this. And from Gauss का क्या है बोलना कि psi is equal to Q. मतलब can I write this Q is equal to integration, close integration over a surface of d dot ds is equal to integration over a volume rho v dv. That is 4.41. I can write this, right? From Gauss law. Is it clear? 4.41. Yes, ma'am. हाँ, ठीक है, लिखो, लिखते जाओ जैसे जैसे क्लियर हो रहा है. राइट इट डाउन, समझ के लिखो. अगर डाउट है आस्क. सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, गॉस लॉ लिखा, उसके बाद साई का एक डिफरेंट इक्वेशन लिखा, क्यू एनक्लोज का डिफरेंट इक्वेशन लिखा, एंड देन साई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज. सो वी हैव रिटन 4.41 नाउ. Okay, so all of you completed with 4.41.
Yes, ma'am. ओके, नाउ अभी तुम लोग को 4.42 डिराइव करना है. सो हाउ टू डू दैट? क्या किया है वहां पे? दे हैव अप्लाइड डाइवर्जेंस थ्योरम टू द मिडल टर्म. ओके, नाउ ट्राई टू रिकलेक्ट डाइवर्जेंस थ्योरम. ओके, जो तुम लोगों ने वेक्टर्स में पढ़ा रहेगा मैथ्स में. तो उसमें कुछ ऐसा था क्या, इफ देयर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो सपोज दिस इज, नाउ यहाँ पे हम लोग डी कंसिडर कर रहे हैं, डी इज द क्वांटिटी. So d dot ds, okay, surface integral of d dot ds, I can write this as integration over a volume of divergence of d into dv. So this is by using a divergence theorem. Is it clear? 4.42. This is a theorem, ठीक है, ये तुम लोग को मैथ्स में तुम लोगों ने पढ़ा रहेगा. तो यू कैन राइट d डॉट ds, अगर सरफेस इंटीग्रल है, ओके, क्लोज सरफेस इंटीग्रल है, क्लोज सरफेस, हाँ, सी यहाँ पे कंटूर है, सो दैट इज अ क्लोज सरफेस इंटीग्रल. क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर ओवर अ वॉल्यूम. सो d डॉट ds, इसका क्लोज इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू divergence of that d, so that's why it is del dot d. Del dot d मतलब divergence of d. ओके, इसका क्या करना है? इसका तुम लोग को वॉल्यूम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है ओवर अ वॉल्यूम dv. इज इट क्लियर? दिस इज अ डाइवर्जेंस थ्योरम. हेलो, ये पहले कभी देखा है ऐसा थ्योरम मैथ्स में? Yes, ma'am. ओके, अगर जिनको याद नहीं आ रहा है, प्लीज व्हाट यू विल डू आफ्टर द लेक्चर, जब टाइम मिलेगा, प्लीज मैथ्स का जो भी बुक है या ऑनलाइन तुम लोग गूगल पे भी डाल सकते हो, तुम लोग को मिल जाएगा डाइवर्जेंस थ्योरम, तो उसमें तुम लोग देख सकते हो. सो यूजिंग, राइट डाउन नेक्स्ट लाइन, बाय डाइवर्जेंस थ्योरम वी कैन राइट डाउन, बाय डाइवर्जेंस थ्योरम वी कैन राइट 4.42. लिखो ये वाला इक्वेशन, राइट डाउन 4.42. मैंने तुम लोग को पहले ही बोला है वेक्टर्स थोड़ा सा रिवाइज करके आना, उसके स्टोक्स थ्योरम, ओके, डाइवर्जेंस थ्योरम, ऑपरेशंस कैसे करते हैं, कर्ल ऑपरेशन, ग्रेडियंट ऑपरेशन है, डाइवर्जेंस ऑपरेशन है, हाउ टू डू दोज ऑपरेशन, हाउ टू परफॉर्म दोज ऑपरेशन. बी फैमिलियर विद ऑल द कार्टेशियन सिस्टम, ऑल द कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो कार्टेशियन है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सिलिंड्रिकल है. आगे जाके जब when we will solve the numericals, at that time those things are required. ठीक है, वो तुम लोग को तब पता चलेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ प्लीज रिवाइज these previous basics. Okay, so this is 4.42. Now you have 4.42, you have 4.41. So can you get 4.43? How to get 4.43? See, 4.41 and 4.42 दोनों में भी हम लोग ने क्या कैलकुलेट किया है? d डॉट ds का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, राइट? d is capital D. Capital D is what? Electric flux density. उसका हमने क्लोज सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट किया. So can I equate 4.41 with 4.42? Can I equate this 4.41 and 4.42, that is rho v dv and del dot d? Yes, ma'am. Del dot d dv. हाँ, yes. So do that and just check whether you are getting 4.43. क्योंकि ये देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड सेम होना ही चाहिए. तो राइट हैंड साइड को कंपेयर करो. तो व्हेन यू कंपेयर, ये डीवी डीवी तो सेम है, इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम सेम है, तो बचा क्या? बचा है रो वी इंटू रो वी हैज टू बी इक्वल टू डेल डॉट डी. So that is your 4.43 equation. Rho v is equal to del dot d. That means rho v क्या होता है? Volume charge density. So volume charge density is equal to divergence of electric flux density. That is your main equation 4.43. And this equation 4.43 जो अभी हम लोगों ने लिखा या derive किया, this is your first of the 4 Maxwell's equation. एकदम स्टार्टिंग में तुम लोग को मैंने 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन दिखाए थे, उसमें से पहला इक्वेशन ये है, रो वी इज इक्वल टू डेल डॉट डी. वी कैन सी इट अगेन.
Can you see this equation 1.1? Yes, ma'am. हाँ, तो ये जो पहला इक्वेशन है वो अभी हम लोगों ने डिराइव किया. ओके, सो वो हम लोगों ने गॉस लॉ यूज करके डिराइव किया. किधर गया आपको? Okay, so that is your first equation. So write down ये box, ये equation को box करो and write down there. This is the first of 4 Maxwell's equation. बस. तो ये था गॉस लॉ. गॉस लॉ क्या है तुम लोग को प्लीज कीप दिस इन माइंड. व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसके इक्वेशंस. ओके, ये जो मैंने यहाँ पे जितना दिया दैट इज इनफ. ओके, राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ. अभी हम लोगों ने गॉस लॉ देखा, गॉस लॉ क्या है वो स्टडी किया. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन. अभी वो यूज कहाँ पे करते हैं, वेयर यू विल अप्लाई दैट लॉ. क्या फाइंड आउट करने के लिए वो लॉ तुम लोग अप्लाई करोगे. ओके, सो दैट विल सी. राइट डाउन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. Now write down application. First application, first मतलब very important application. Gauss law is used to calculate the electric field Gauss law is used to calculate electric field intensity at a distant point P. Electric field intensity at a distant point P. By calculating capital D. Capital D मतलब electric flux density. By calculating capital D at point P. By calculating capital D at point P. Capital D is electric flux density. Okay, now simple question I will ask. Now this is based on previous जो भी अब तक हमने स्टडी किया. If I can calculate capital D, ठीक है, capital D अगर मैंने calculate किया, so can I get E का value, that is electric field intensity. Can I get electric field intensity from capital D? Is there any formula? You can check in your notebook. ऐसा कोई formula लिखा है क्या जहाँ पे तुम लोग को अगर if you know the D value, D मतलब electric flux density, if you know, can you find out electric field intensity, E? Yes, ma'am. What is that equation? Epsilon naught into E. Epsilon naught into E is equal to D, right? Yes. हाँ, yes, बराबर है. ये वाला इक्वेशन है. क्या इक्वेशन है? कैपिटल D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E. इसका मतलब है ये है कि अगर तुम लोग ने D कैलकुलेट किया तो D कैलकुलेट करने के बाद तुम लोग E इजीली ये इक्वेशन यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, सो इसलिए मैंने अभी व्हाट इज द एप्लीकेशन, गॉस लॉ क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. गॉस लॉ इसके लिए यूज कर रहे हैं कि अपने को अगर इफ यू वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंट पॉइंट P. ओके, distant, when I am saying distant point P मतलब it is obviously from a particular charge distribution. Okay, कहीं पे तो एक चार्ज लोकेटेड है, कहीं पे तो स्पेस में एक चार्ज लोकेटेड है. वो चार्ज से एट अ डिस्टेंट पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है. देन हाउ टू डू दैट? सो दैट कैन बी डन यूजिंग गॉस लॉ. ओके, तो नाउ अभी ये करने के लिए वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स. सो राइट डाउन द फर्स्ट स्टेप. जल्दी से स्टेप लिखो. राइट डाउन स्टेप 1. First, find out the symmetry. Find out whether the symmetry exists. And now अभी मैंने लिखा है कि वो symmetry exists. किसका symmetry? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोग कंसीडर करोगे उसको दैट शुड बी सिमेट्रिकल. राइट डाउन इन ब्रैकेट लिखो. सिमेट्री किसका? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका सिमेट्री होना चाहिए. ओके, so this is the first point. What is the next point? If you know that the charge distribution which you are considering that is a symmetrical, then you can write down. Then second step is to construct a Gaussian surface. Write down to construct a mathematical closed surface. Write down this way. Construct a mathematical closed surface around that point, around that charge distribution.
जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको क्लोज करने वाला एक मैथमेटिकल सरफेस तुम लोग को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. दैट इज द सेकंड स्टेप. एंड दिस मैथमेटिकल क्लोज सरफेस इज कॉल्ड एज अ गॉसियन सरफेस. ब्रैकेट में लिखो, दिस मैथमेटिकल क्लोज सरफेस इज कॉल्ड एज अ गॉसियन सरफेस. Ma'am, can you repeat the second step? फर्स्ट तुम लोगों ने क्या लिखा? टू नो, फर्स्ट स्टेप इज टू नो वेदर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल. ओके, टू नो द सिमेट्री ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्ट क्लियर है? फर्स्ट स्टेप. Yes, ma'am. हाँ, ये हम लोग कौन सा स्टेप देख रहे हैं? हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ रहे हैं. एप्लीकेशन क्यों, कहाँ पे यूज करना है ये? टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो अगर मुझे डी कैसे तो करके अगर डी पता चलेगा, टी मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, अगर डी पता चलेगा देन आई कैन कैलकुलेट ई. तो डी पता करने के लिए आई नीड टू यूज द गॉस लॉ, बट उसके लिए एक प्रोसीजर है. दैट प्रोसीजर वी आर राइटिंग. सो फर्स्ट स्टेप इज टू नो द, ऑब्वियसली जो भी हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फ्लक्स डेंसिटी जो भी बोल रहे हो, ये कब आएगा? इफ देयर इज अ चार्ज. ओके, अगर कहीं पे तो स्पेस में चार्ज है, चार्ज अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ही ये सब पॉसिबल है. अगर चार्ज ही नहीं है तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है. ओके, नाउ व्हेन वी से दैट चार्ज एग्जिस्ट, तो चार्ज कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट मीन्स व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट चार्ज? इज इट अ पॉइंट चार्ज? इज इट अ लाइन चार्ज? इज इट अ सरफेस चार्ज? इज इट अ वॉल्यूम चार्ज? तो वो कौन सा है? ओके, तो वो अपने को पता होना चाहिए कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वेदर इट इज अ सिमेट्रिकल. तो सिमेट्री भी आपको चेक करना है, सिमेट्री है क्या? यस. इफ इट इज अ सिमेट्रिकल देन वी कैन गो विद द प्रोसीजर. अगर सिमेट्री नहीं है देन वी कांट गो. ओके, सो सबसे पहला स्टेप है टू नो अबाउट द सिमेट्री ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, एंड वंस द सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट, एक बार ये क्लियर हो गया कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है, then we can construct a mathematical closed surface around that charge. For example, अभी तुम लोग को यहाँ पे can you see this figure 4.13? ये दिख रहा है 4.13 फिगर दिख रहा है? Yes, ma'am. Okay. अभी यहाँ पे what is this? It is a point charge. Okay, तो point charge मतलब क्या? I have assumed that there is a Cartesian coordinate system where this q मतलब point charge exists at the origin पे वो point charge located है. ओके, अभी मैं तुम लोग को क्वेश्चन पूछूंगी, कैन आई से दिस Q इज सिमेट्रिक चार्ज? और दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, कैन आई से लाइक दैट? यस और नो, सिमेट्री है या नहीं है, वो मैंने क्वेश्चन पूछा. इट इज अ पॉइंट, तो सिमेट्री है ना? समझा? Yes. ओके, सो दिस इज अ सिमेट्रिक. ओके, सो नो इशू, सिमेट्रिक चार्ज है. नेक्स्ट, अभी एक बार ये पता चल गया कि वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है, देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अभी मैंने बोला यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ मैथमेटिकल क्लोज सरफेस अराउंड दैट चार्ज. तो तुम लोग को जो क्लोज सरफेस जो तुम लोग कंस्ट्रक्ट करने वाले हो वो ऐसा होना चाहिए कि वो सरफेस के ऊपर का हर एक पॉइंट वो चार्ज से सेम डिस्टेंस पे हो. सो तुम लोग को फिर सोचना पड़ेगा व्हाट शुड बी दैट क्लोज सरफेस ओवर हियर. अभी यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, सो कैन आई से पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड एट एन ओरिजिन. तो अगर मैंने एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट किया, स्फीयर इज अ क्लोज सरफेस. ओके, जिसका रेडियस यू कैन सी दिस इज अ स्मॉल r, दिस इज द रेडियस ऑफ अ स्फीयर. तो अगर मैंने एक क्लोज्ड स्फीयर कंस्ट्रक्ट किया अराउंड दैट Q, ओके, सो क्लोज सरफेस कंस्ट्रक्ट किया, सो दैट कैन गिव मी अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब ये Q का इफेक्ट सब जगह पे सेम होगा, कैन आई से लाइक दैट? ओके, ठीक है. सो दिस इज द मैथमेटिकल सरफेस. तो यहाँ पे अभी मैथमेटिकल क्लोज सरफेस कौन सा है? ये जो स्फीयर है ना, ये स्फीयर जो दिख रहा है दैट इज योर मैथमेटिकल क्लोज सरफेस, एंड दिस सरफेस इज कॉल्ड एज अ गॉसियन सरफेस. यहाँ पे लिखा है, यू कैन रीड गॉसियन सरफेस. तो ये गॉसियन सरफेस है तुम लोग का. किसके लिए? दिस इज द गॉसियन सरफेस फॉर दिस पॉइंट चार्ज Q which is located at the origin of the coordinate system. Is it clear this point? Hello? Yes, ma'am. Okay. हाँ, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? एक बार ये काम हो गया, क्या किया तुम लोगों ने? गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर दिया. नेक्स्ट स्टेप विल बी
जो तुम लोग बोल रहे हो ना कि पॉइंट पी, मुझे एट अ पॉइंट पी मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है या डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कितना है. सो दैट पॉइंट पी हैज टू बी ऑन द सरफेस. विच सरफेस? गॉसियन सरफेस. ओके, मतलब जो भी पॉइंट पे तुम लोग को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, you should make sure that your Gaussian surface जो तुम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, that surface should pass through that point. कौन सा पॉइंट P? So can you see here, ये जो sphere है, it is passing through this point P. ये पॉइंट P दिख रहा है? ओके, हाँ. So this is important. So ये जो पॉइंट P है, it is the observation point. Okay, point P is the observation point, which is a very much far away. You can consider बहुत दूर है ये Q से. Okay, and what is the radius? Radius is small r in this case. Okay, so that is the distance between Q and P. Okay, so एक बार तुम लोग को ये पता चल गया कि P पॉइंट पे मुझे कैलकुलेट करना है फ्लक्स डेंसिटी, which is denoted by D, capital D. Now how to calculate capital D? What will be the direction of capital D? So capital D का जो डायरेक्शन है, that is always normal to the surface. Okay, तो ये सरफेस है, क्लोज सरफेस. तो ये सरफेस को नॉर्मल ड्रॉ करना है एट पॉइंट P. So can you see this normal? ये एरो दिख रहा है तुम लोग को? Can you see this arrow? हाँ. So this ये जो एरो है, this you can consider as a vector. और ये किसका डायरेक्शन दे रहा है तुम लोग को? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी दे रहा है. अंडरस्टूड? ये समझा? ठीक है. ओके, तो अभी तुम लोगों ने सॉरी कितना हो गया? 16 हो गया. जस्ट चेक वेदर यू हैव रिटन स्टेप्स. हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं आज का लेक्चर. जस्ट चेक 3 स्टेप्स लिखा है क्या? फर्स्ट, symmetric charge distribution exists. You have to make sure that symmetric charge distribution exists. First point. Just check whether you have written. Yes? लिखा है? Yes. Okay. Second point, once it is confirmed that symmetric charge distribution exists, we will construct a mathematical closed surface around that charge, which is also called as a Gaussian surface. Just check. Second point. Yeah, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Write down third point. Third point लिखो. Third point, write down. The surface is chosen. अभी जो भी तुम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया सरफेस, ओके, उस पे भी तुम लोग को एक छोटा सा डिक्रीमेंटल या इंक्रीमेंटल एकदम इंक्रीमेंटल मतलब छोटा सा, वो पूरे बड़े सरफेस पे एक छोटा सा इंक्रीमेंटल सरफेस तुम लोग को चूज करना है. सो वो कैसे चूज करना है? सो राइट डाउन, द सरफेस इज चोजन सच दैट, द सरफेस इज चोजन सच दैट कैपिटल डी is normal or tangential. Capital D is normal or tangential to the Gaussian surface. Such that capital D is normal or tangential to the Gaussian surface. Okay? So यहाँ पे जो मैंने तुम लोग को ये एग्जांपल बताया था ना पॉइंट चार्ज का P, तो P पे सो तुम लोग सी ये जो पूरा स्फीयर है ये पूरा तुम लोग का गॉसियन सरफेस है. अब ये पूरे गॉसियन सरफेस पे तुम लोग तो डायरेक्टली यू कैन नॉट कैलकुलेट ऑल दोस थिंग्स. तो तुम लोग क्या करोगे? यू विल कंसीडर अ स्मॉल एरिया, स्मॉल इंक्रीमेंटल एरिया. तो ये जो इंक्रीमेंटल एरिया है, हाउ टू चूज दैट एरिया? वो एरिया ऐसे चूज करना है कि अभी मुझे एट अ पॉइंट P कैलकुलेट करना है. सो दैट पॉइंट P शुड कम इन दैट इंक्रीमेंटल एरिया. ओके, सो इसके अराउंड एक छोटा सा एरिया तुम लोग उसके ऊपर का कैलकुलेट करोगे. एंड दैट एरिया के लिए यू विल कैलकुलेट दिस D. ओके, सो द सरफेस इज चोजन सच दैट D इज नॉर्मल और टेंजेंशियल. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो D है ये नॉर्मल है, तो दिस इज अ नॉर्मल कंपोनेंट ऊपर जो डायरेक्टली जा रहा है. टेंजेंशियल अगर आएगा तो ऐसे आएगा, दैट विल बी टेंजेंशियल टू द क्लोज सरफेस, दैट इज अ स्फीयर. ये स्फीयर को अगर मैंने एट पॉइंट P टेंजेंट ड्रॉ किया, देन दैट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट. नॉर्मल है तो नॉर्मल कंपोनेंट है. ओके, ठीक है. सो विल कंटिन्यू विद दिस पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. वी विल कैलकुलेट अगर टेंजेंशियल है तो वैल्यू क्या होता है, नॉर्मल है तो वैल्यू क्या होता है, एंड वी विल आल्सो कंप्लीट द इनफाइनाइट लाइन चार्ज एंड surface charge in the next lecture. Okay, till then, thank you for attending. I've taken the attendance, you can leave.